मैं अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति मानता हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ भारत के अध्यात्म और संस्कृति की बड़ी महिमा थी। पिछले 3 दशकों से मुझे विपश्यना साधना करने का भी अवसर मिला। इस सब ने मुझे भारत के प्रति बहुत सोचने को मजबूर किया कि यह देश कैसा है और इसकी इतनी महान परंपराएं कैसे बनी और आज उनका क्या हाल है। एक ट्रेन यात्रा के दौरान 10 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात ने इस फिल्म को जन्म दिया। मेरी मुलाकात राम जी से हुई, जो कि एक सरकारी अफसर होने के बावजूद इन विद्याओं के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते थे और उसके लिए बड़े पीड़ित थे कि इसके बारे में हम ठीक से जानते नहीं। यह हम लोगों की साझा दूसरी फिल्म है और पिछले 6-7 वर्षों से राम जी और दीपिका जी कोठारी दोनों ने इसे बनाने में इतना परिश्रम किया है, इतना त्याग किया है। भारत अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सभ्यता ऋषियों की सभ्यता है जो निस्वार्थ थे और जिन्होंने घोर तप किया। और दूसरी खास बात यह थी कि भारत की ज्ञान परंपराएं अटकलबाजी पर आधारित नहीं है, एम्पिरिकल नॉलेज पर आधारित नहीं है। यह तपस्या से निकले प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों पर आधारित है और जो निस्वार्थ हैं, जिसमें विश्व में सबका कल्याण हो, ऐसी भावना है। ये खास सोचा जा सकता है कि क्योंकि ऐसी परंपराएं दुनिया में कहीं और थी नहीं, तो लोगों की बातें समझ में नहीं आई और कुछ अनजान नादान लोगों ने इस परंपरा को, इस संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई है। ऐसी विद्वान, ऐसी संस्थाएं, उनके ऊपर ऐसे क्रूर आक्रमण हुए। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रूर बात तो यह है कि हमारी पीढ़ियां आज़ादी के बाद भी अपने ही देश और उसके महानतम भंडार को ठीक से नहीं जानती, और जो जानते ही नहीं तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे। तो हमारी फिल्म के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइए अपनी इस महान विरासत को जानें, उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं और किस तरह इन विद्याओं से पूरा जगत सुखी हो, ये भावना को आप संजोएं और इसे आगे बढ़ाएं। Namaste everyone. I am delighted that Deepika ji and Ram ji are launching their multi-part series on Indian civilization, documentary series. The involvement with me began over a dozen years ago when I was writing my book Being Different. They were very important supporters. When the book came out, they read it thoroughly. They came and saw me and said, we want to do a documentary on this, inspired by this, and you will narrate it. And so it started with that, and it has evolved. Thanks to the generous support of Vallabh Bhanshali ji, this project has expanded well beyond what we imagined earlier. Deepika ji and Ram ji have visited me many times in Princeton. I have visited them in Mumbai and Delhi. We've done many shoots. So this project expanded from one documentary to a whole series covering many more topics than we earlier imagined, which is wonderful. It's wonderful to be the starting point of something so amazing that develops in this way. Along the way, many other scholars came in, many other voices who added so much enrichment. So this has become a movement to explain who we are, why that matters to the future, to our generations to come, in what way we are distinct. We do it with mutual respect. We don't do it out of disrespect for others, knocking them down, but we are saying here is who we are and why we are different. So the story of Bharatiya civilization and its distinctiveness has never been said in such a clear way as this documentary series that Deepika ji and Ram ji have developed.
and I'm honored and delighted to have been a part of it from the very beginning, from the incubation, from the thought stage till now. I'm glad that I played a tiny role in the actual filming itself. So congratulations once again. All my love, blessings, support to you, and wishing that many, many more such documentaries will come from you. Thank you very much. Namaste. I welcome you all to watch the documentary series Indian Civilization, Continuities and Change. The series depicts the continuities of cultural tradition, knowledge systems and philosophical thoughts of India over the ages. Different types of cultures developed in different parts of the world, and exchanges between these cultures and the people helped accumulate the knowledge and the arts. The present knowledge is founded on the millennia of that knowledge bank, but the destruction of knowledge and the traditions and culture is a great loss to humanity. The narrative of India that we are showing you today is, on the one hand, creation of the highest form of civilization, and on the other, its destruction to a great extent by the invaders. But the most astonishing fact is that much of the ancient wisdom and culture continues to live even today. The film explores the reason for its continued survival and what are the core values that give India her unique identity in the world. This whole series has taken 10 years of extensive research and filming. For that, we traveled across various parts of India and different continents. 141 Indian archaeological sites, that includes the temples, the shrines, museums and libraries. All of that we visited to collect our data, and we filmed 52 archaeological sites and museums around the world. And ironically, I'll tell you that the intact and the best sculptures and iconography of temple art and temples of India and various paintings and rare manuscripts are now a part of collection of the world museums. We are extremely grateful to all our 30 eminent scholars who have helped and contributed in this whole process. 15 of them are appearing in this film. India has always been the land of knowledge. Even today, we have a lot many great minds amongst us. It's just that we have to value their presence and to be enlightened with their wisdom. We are very grateful to all our family members and friends who have continued to help us and support us in this big endeavor. I thank all my crew members for their tiring effort and often in very odd and difficult circumstances. In the end, I would like to say that this mammoth task wouldn't have been possible without the generous and constant support and encouragement by Shri Vallabh Bhansali ji. We often debated, discussed and really delved upon many aspects of this film, and this is the joint effort of all of us here. नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान में सम्मिलित होने जा रहे हैं। श्रीमती दीपिका कोठारी और श्री रामजी ओम द्वारा प्रस्तुत भारतीय सभ्यता में सातत्य और बदलाव को लेकर वृत्तचित्रों की श्रृंखला जारी की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए। इस श्रृंखला का मैंने पूर्वावलोकन किया। यह अपने ढंग का एक अनोखा कार्य है और दुर्लभ जानकारियों का संयोजन इस वृत्तचित्र श्रृंखला में दीपिका जी ने किया। अपने सहयोगियों के साथ बहुत अन्वेषण उन्होंने किया, परिश्रम और लगन के साथ तथ्यों को उन्होंने संजोया है और एक सर्वांगीण चित्र वे प्रस्तुत करती हैं भारत के ज्ञान और विज्ञान की बहुविध बहुमुखी परंपराओं को लेकर। हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों
और चिंतन के आयामों को जिस तरह से एक क्रमिक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि उनमें एक निरंतर्य कंटिन्यूटी और एक विकास और बदलाव भी हम पाते हैं, और जो बहुत सारी गलत धारणाएं हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर प्रचारित की जाती रही, उन पर पुनर्विचार करने के लिए भी निश्चित रूप से यह वृत्तचित्र श्रृंखला हमें विशेष रूप से नई पीढ़ी को, जिसकी कि इन जानकारियों को समझने की, बूझने की बहुत आवश्यकता है, उसको वह स्फूर्त और प्रेरित करेगी। और पूरी हमारी जो सांस्कृतिक यात्रा है, सुदीर्घ परंपरा हमारी है, कई हजार वर्षों की लंबी कालावधि में फैली हुई, उस पर पुनर्विचार का सिलसिला इससे शुरू हो सकेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत ही बड़ी बात इस प्रयास में यह है कि परंपराओं के सातत्य और बदलाव का एक सजीव चित्र यह प्रस्तुत करती है। भारतीय संस्कृति पर यह फिल्म बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ एक शब्द समझ लेने की आवश्यकता है, और वो शब्द है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन शब्द का निर्माण या उसको कॉइन किया है प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने, और 50s के दशक में, 1950s के दशक में ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और इसका अर्थ ये है कि निम्न जातियां या आदिवासी ऊपर की जातियों को, विशेषकर ब्राह्मणों के रिचुअल्स का अनुसरण करती है, उनकी नकल करती है और ऊपर जाना चाहती है। और इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा कि ये संस्कृताइजेशन है। इसका ये अर्थ है कि जो नीचे के लोग हैं, आदिवासी और जो नीची जात, सो कॉल्ड नीची जात जो है, वो संस्कृताइज नहीं है, मतलब वो उनमें वो संस्कृति नहीं है जिसको हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। तो ये अवधारणा थी। संभवतः इस अवधारणा से आकर्षित होकर के ही प्रोफेसर श्रीनिवास को ऑक्सफोर्ड ने आमंत्रित किया और ये वहाँ प्रोफेसर रहे, और बाद में इनकी बहुत ख्याति हुई, और ये आजकल एक गुरु माने जाते हैं, एक लेजेंड माने जाते हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। इस अवधारणा ने बहुत हानि पहुंचाई है, भारतीय संस्कृति के सत्य का बहुत नुकसान किया है इसने। इसको अभी ऐसे समझें कि हाल ही में एक आदिवासी बहुल राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनको हार्वर्ड ने आमंत्रित किया और उन्होंने हार्वर्ड में विद्यार्थियों को और प्रोफेसर्स को संबोधित किया। विदेशी विश्वविद्यालय ऐसी बातें कहने वालों को क्यों आमंत्रित करते हैं और क्यों उनका प्रचार करते हैं और क्यों उनको स्थापित करते हैं, ये एक अलग विषय है। इस पर एक अलग से विस्तृत फिल्म बन सकती है। इस विषय को श्री राजीव मल्होत्रा ने ब्रेकिंग इंडिया में डील भी किया है। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि ये दो अवधारणाएं, संस्कृताइजेशन की अवधारणा और आदिवासी समाजों में हिंदू संस्कृति नहीं है, वो हिंदू नहीं है। इन्होंने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने हमारे संस्कृति के सत्य का नुकसान किया है, और हमारे यहाँ माना जाता है कि जब सत्य का नाश हो जाता है तो मतलब सत्यानाश हो जाता है, संस्कृति समाप्त हो जाती है। इसको काउंटर करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। अगर आदिवासियों की बात करें तो सबसे पहले आप प्रोफेसर के.एस. लाल के अगर साहित्य को पढ़ें, प्रोफेसर के.एस. लाल आधुनिक समय में एक बड़े गंभीर विद्वान माने गए हैं मेडिवल भारत पर, मध्यकालीन भारत पर। उन्होंने कहा है कि उनके साहित्य में जो कुछ लिखा है वो हम इस फिल्म में लेके आ रहे हैं, और उनको अगर माने तो पता चलेगा कि वास्तव में आदिवासी ही असली हिंदू हैं और असली प्राचीन भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। सामान्य समझ से भी आप इसको जान लेंगे। वेद में ऋषियों ने जो मंत्र बनाए हैं वो प्रकृति की शक्तियों को प्रसन्न करने की स्तुति है मुख्य रूप से। यही चीज, यही धारा आपको आदिवासियों में देखने को मिलेगी। इसलिए प्रोफेसर
वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये कहा कि मुझे आश्चर्य है कि मेरे अंग्रेज विद्वान, मेरे साथी जो उस समय भारत में थे, वो वेद को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। मैं उसका अर्थ कैसे समझ लेता हूँ? तो उन्होंने कहा कि शायद इसका कारण ये है कि मेरा जन्म और लालन पालन एक बहुत छोटी सी जगह पे हुआ। मेरठ में खेड़ा नाम के गांव में वो पले और बड़े हुए थे, और ठीक वही परिस्थितियां कुछ हमारे भी जीवन में रही, खासतौर से मेरे जीवन में रही। एक बहुत छोटे ग्रामीण जीवन में, परिवेश में, जिसको आप आदिवासी जीवन भी कह सकते हैं, उसमें हमारा लालन पालन हुआ, वहीं शिक्षा हुई। और उसी समय मैं खासतौर से वैदिक साहित्य के संपर्क में आया। जब वेद को पढ़ने लगा तो उसमें लगा कि ये तो वही बातें हैं जो हमारे पुरखे हमको समझाते आए हैं। मेरा संपर्क वैदिक साहित्य से सबसे पहले राजस्थान पत्रिका नाम के अखबार के माध्यम से हुआ। उस समय, आज हम ये कहते हैं कि वेद जैसा गंभीर विषय को हम मीडिया में क्यों छापें, डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाएं, इनको कौन देखता है। लेकिन देखिए, आश्चर्य की बात है, 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में ये श्रृंखला वेद विज्ञान वार्ता के नाम से बहुत गंभीर विषय पर राजस्थान पत्रिका प्रकाशित करता था, और उसको कम से कम दूसरे पढ़ते थे या नहीं, लेकिन मैं उसको नियमित रूप से पढ़ता था। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मैं वहाँ तक पहुँच गया जहाँ राजस्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक कर्पूर चंद कुलिश जी सम्मेलन आयोजित करते थे। मैं उन सम्मेलनों तक पहुँच गया। उसके बाद ही मैं अलग अलग विद्वानों से जुड़ा, प्रोफेसर दयानंद भार्गव से जुड़ा, जो आज भी इस फिल्म में हैं, तब से हमारा संपर्क है और इस फिल्म में भी बोलेंगे। उसके बाद प्रोफेसर देवीदत्त जी चतुर्वेदी से हम जुड़े। वो देवीदत्त चतुर्वेदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनके पिताजी महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी बहुत बड़ा नाम है भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में, और उन्होंने ही मुझे पंडित गोपीनाथ कविराज के बारे में और उनकी जो भारतीय संस्कृति और साधना के विषय में जो साहित्य है, उनसे हमारा परिचय करवाया। उन्हीं सम्मेलनों में हम पंडित मधुसूदन ओझा और पंडित मोतीलाल जी शास्त्री के साहित्य से हमारा परिचय हुआ। और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण हमारा संपर्क है, मेरा संपर्क है, वो डॉक्टर DS कोठारी से हुआ। उनके साथ नित्य उपनिषद और गीता के विषय में जो एक सत्संग हुआ, उन्होंने जो बोला, उससे इन चीज़ों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा संपर्क विद्वानों से हमारा योग का इतिहास विषय पर फिल्म बनाते समय हुआ। उस समय भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों से हम मिले, जैसे प्रोफेसर SR राव, और हमारी समझ उससे बहुत बड़ी। उसी फिल्म को जिन्होंने रिलीज किया था वो श्री राजीव मल्होत्रा इस फिल्म के भी प्रेरणा पुरुष हैं। उस फिल्म से ही हमारे संपर्क में श्री वल्लभ भंसाली आए थे, और श्री वल्लभ भंसाली इस फिल्म के भी आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष को पूरा समर्थन देने वाले हैं। उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। उन्हीं की उदारता से ये काम आप तक पहुंच रहा है। अंत में हम उनको याद करना चाहते हैं जिनका सबसे अधिक योगदान इस फिल्म में है, जिनका हम कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका नाम पहले ही लेना बहुत आवश्यक है। सबसे ऊपर है महर्षि अरविंद, उनके बाद प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे हैं स्टेला क्रेमरिश, और चौथे हैं डॉक्टर नागास्वामी। इन लोगों के काम के बिना ये फिल्म संभव नहीं थी। जो कुछ भी इसमें अच्छा है, रोचक है, आश्चर्यजनक है, कौतूहल पैदा करता है और आपको एनलाइटन करता है, वो इन्हीं के कार्य का नतीजा है। अगर आपको इसमें कोई दोष नज़र आए, त्रुटि नज़र आए या प्रस्तुति में कोई कमजोरी नज़र आए, तो वो कमजोरी हमारी है, उसे आप क्षमा कर देंगे। आज इतने वर्षों के परिश्रम के बाद ये फिल्म आपके सामने आ रही है, इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता है, और दुख भी है कि कुछ लोगों को हम अपने हृदय से इस फिल्म समर्पित करना चाहते हैं, वो आज इसमें नहीं है। शायद वो देखते तो बहुत प्रसन्न होते, जैसे स्वामी राजेश्वरानंद जी। उनकी बड़ी इच्छा थी और वो इस कार्य को देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं है।
लेकिन हमें विश्वास है कि उनके स्वर आपको आह्लादित करेंगे। मुझे ये विश्वास है कि सूर्योदय दर्शक तो इस फिल्म का सचमुच रस लेंगे और उनको बहुत आनंद आएगा। जो इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे उनको भी इसमें एक नई दिशा मिलेगी संवाद की और वाद की, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।